Welcome all of you again with the part second. Here we read about study about the second part of class 7 history, chapter 2, new kings and their kingdoms. Clear? मैंने आपको लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे अपने 3 dynasties which one the first is Gurjara, which was belong from the Gujarat. The second one is Rashtrakuta, which one is belongs from the Maharashtra, and the last one is Palas, which one is conquering the area of Bengal, Assam, or the little bit area of like eastern part of India. Clear? I am again draw here. Just look like this is a sorry, this dot, so it is not Lena and there. Clear? I told you this is the area of Gurjara. Okay, this is the area of Pala, and this is the area of Rashtrakutas. I told you this one, Hana? And one more thing I told you, what is this is a city that name is Kannauj. Okay, today also this city is presented in Uttar Pradesh, but that time it is actually a state, a province. Okay, so that time the kings have to work with that provinces which one they conquering, जिनको वो जीतते थे लड़ाइयों में, उनको वो annexes हड़प लेते थे, कब्जे में कर लेते थे. When that these 3 dynasties, these are the dynasty name, these are not a particular king name. Okay, I told you in last video, Gurjara have 3 main rulers. That name is the Nagbhatta first. This is he was the founder. The second was is Raja Bhoja. He was a famous ruler of this, and the last one is a Mahendrapala first. In Rashtrakuta dynasty, there is most famous one is who one is there? I think Rashtrakuta there is a Danti Varman. Okay, and someone called as a Danti Durga also. And the Pala dynasty there is a 3 Palas: Gopala, Devpala, Gopala, Dhampala, Devpala. So Pala dynasty is there. So this is a map, because whenever you read about or studied about the geography or any kind of, in my sense of humor na, always whenever you read any kind of SST related work na, you just keep in your mind your map. Whenever you studied with the according the map, it is more easier to understood. Okay, जैसे आप इस map में देख रहे हो, Gurjara from the Gujarat, Rashtrakuta from the Deccan area, and the Palas from the Bengal area. तो आपके दिमाग में automatically एक map बन गया कि कन्नौज कहाँ है, in the center. और इसी वजह से इनका एक struggle हुआ in 3 dynasties के बीच में. That name is tripartite struggle. Clear? Tripartite struggle. Tri means 3. हमारा ट्राई कलर का फ्लैग है ना, 3 कलर है, तो ट्राई मीन्स 3. पर्टाइट पार्टिसिपेट करने वाले, स्ट्रगल संघर्ष, ऐसा संघर्ष जिसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. वो 3 लोग कौन थे? कोई पर्सन नहीं थे. दीज आर द डायनेस्टीज. वो 3 डायनेस्टीज थी. दिस स्ट्रगल अप्रोक्स टेकिंग अ टाइम ऑफ 200 years. कैसे 200 years? Sometimes Gurjara won, sometimes Palas won, and sometimes Rashtrakutas won. एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उसको कैप्चर करते रहते थे. एक टाइम, लास्ट टाइम ऐसा आया जब इस पे जो गुर्जरा डायनेस्टी के राजा भोजा हैं, उनका लास्ट में उस पे अधिकार हो गया और फाइनली उन्होंने उसको अपनी कैपिटल बना लिया. तो लास्ट में किसकी जीत हुई? गुर्जरास की. बट ये स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहा 200 years तक, बिलोंग विद दीज डायनेस्टीज. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. नेक्स्ट थिंग इज इन मेन इज, अगर आप इसको बाय द हुक बनाओ फ्लो चार्ट, तो ये ऐसे बना लोगे आप. ठीक है, वेन एवर यू स्टार्ट विद इट
आप अपने चैप्टर में बनाओगे ना, तो अगर आपको मैप अवेलेबल हो जाए इंडिया का, तो यू कैन ड्रॉ दिस वन ऑल्सो, जिससे आपको ईजिली लर्न रहे वेन एवर यू सॉ दैट, कि आपने देख लिया वो मैप और आपके माइंड में क्लिक कर गया ईजिली दैट आंसर. ओके, तो देयर इज अ फर्स्ट आई टोल्ड यू गुर्जरा डायनेस्टी. द सेकेंड इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, and the third and last one is Pala dynasty. Okay, Pala dynasty के that one most important ruler that धर्मपाला, जिन्होंने की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट करवाई थी. दिस वन इज इंडियाज सेकेंड यूनिवर्सिटी. ओके, सबसे बड़ी हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी है वो विक्रमशिला. चलिए अब बात करते हैं 200 ईयर्स तक चला. उसके बाद बात आई इस स्ट्रगल को स्टार्ट किसने किया था. इस स्ट्रगल को स्टार्ट किया था गुर्जरा के ही गुर्जरा प्रतिहारा के वत्स राजा ने. वत्स राजा इनके एक राजा थे जिन्होंने इस स्ट्रगल को स्टार्ट किया था. वत्स राजा प्रतिहारा इनका पूरा नाम था. प्रतिहारा इनका पूरा नाम था. तो आपने इस ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल में क्या चीज़ें सीखी हैं. ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल किसके बीच में हुआ. 3 डायनेस्टीज के बीच में हुआ. किसने स्टार्टिंग की. इन्होंने स्टार्टिंग की थी. ओके, इन्होंने स्टार्ट किया था. ये अप्रोक्स 200 ईयर्स तक चला. इसमें लास्ट में जो वॉन हुए, कौन से किंग वॉन हुए. वो किंग हुए गुर्जरा डायनेस्टी के राजा भोजा. कौन किंग विन हुए. राजा भोजा. राजा भोजा जीत गए और इनको एक और नाम से जाना जाता था, नोन एज, इनको एक और नाम से जाना जाता था. दैट नेम इज मिहिर भोजा. ऑलवेज रिमेंबर, राजा भोजा का ही नाम मिहिर भोजा है. अगर आपसे बोल दे कि ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल में इनमें से कौन लाइक ना, और जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपको राजा भोजा ना दे के मिहिर भोजा दे देगा, देन यू मस्ट रिमेंबर कि दिस द नेम एज ऑफ राजा भोजा, यही राजा भोजा का ही नाम है. तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी. किंग भोजा ने अपनी कैपिटल बना लिया कन्नौज को. इन्होंने लास्ट में जब ये जीत गए तो इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया. इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज को बना लिया. कन्नौज को बना लिया. तो सो सिंपल. अगर आपको राष्ट्रकूटा, पाला और प्रतिहारा गुर्जरा समझ में आ गए तो आपको आगे इनको ही, गुर्जरा को ही गुर्जरा प्रतिहारा भी बोला जाता है. गुर्जरा प्रतिहारा भी बोला जाता है. तो एक बार फिर से क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं. ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल, 3 डायनेस्टीज, गुर्जरा, पालाज एंड राष्ट्रकूटास फॉर द कन्नौज प्लेस, है ना, फॉर द कन्नौज प्रोविंस. गुर्जरा को गुर्जरा प्रतिहारा भी बोला जाता है, राष्ट्रकूटा, पाला. लास्ट में इस ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल लगभग 200 ईयर्स तक ये चला और लास्ट में इसमें कौन जीता. इसमें राजा भोजा, जो कि गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो जीत गए. उनका दूसरा नाम मिहिर भोजा भी है और इन्होंने लास्ट में कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया. स्टार्ट किसने किया इस स्ट्रगल को. लास्ट टाइम में इसको स्टार्ट किया था वत्स राजा ने. वत्स राजा प्रतिहारा, जो कि गुर्जरा डायनेस्टी के ही राजा थे, इन्होंने इस स्ट्रगल को स्टार्ट किया था. सो इट्स टू इजी आपको लर्न करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए. एंड आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट इन अ नेक्स्ट पार्ट देयर इज राइज ऑफ राजपूत्स. राइज ऑफ राजपूत्स में पढ़ेंगे हम तोमर, चौहान, परमार और पृथ्वीराज चौहान के बारे में. पृथ्वीराज चौहान, हम सब ने इनकी कहानी सुनी हुई है कि कैसे एक जो हमारे राजपूत राजा हैं, इन्होंने बाहर जो विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर अफगानीज के हो रहे थे, इन्होंने कैसे उसको रोका और कैसे ये शहीद हो गए उस आक्रमण को रोकते हुए. और उस जो राजा था गजनी, उसने कैसे इनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, और क्या किया इनके साथ, ये सारी
बातम सॉरी गजनी नहीं, गौरी ने, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। टू इंटरेस्टेड स्टोरी वो दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने के साथ क्या हुआ पहले और दूसरे में, ठीक है। तो उसको हम उसके साथ पढ़ेंगे। इस मैप को याद रखिए, अपने साथ मैप हमेशा रखिए व्हेन एवर यू स्टडी द एसएसटी सब्जेक्ट। आप चाहे आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो चैप्टर, या कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो ना जिसमें कि जो एसएसटी वर्ड से रिलेटेड हो, आप 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, डजेंट मैटर, आपको मैप वर्क आना बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगी कि इन्हीं चैप्टर्स के बीच में एक बार आपको मैप भी समझाऊँ, जिससे आप इजीली समझ पाओ कि कौन सा स्टेट कहाँ है। अभी आप घर पे हैं, आराम से मैप की प्रैक्टिस करिए। आपके पास बुक्स होंगी जिसमें मैट्रिक्स भी आपको मिली है ना, तो आप उसमें पूछ सकते हैं मेरे से और पढ़ें आराम से। भाई पढ़ना है तभी आगे बढ़ना है। एक बार न्यू किंग्स एंड, और लास्ट का आपको दे दूं कि नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ राजपूत। Thank you.